Hello and welcome students in my video lecture series on the subject of botany. In today's video lecture we will focus on the botany of class 12 and we will start with a new unit, that is strategies for enhancement in food production. The name of the unit is strategies for enhancement in food production. That what are the various methods with the help of which we can increase the quantity and quality of food production in different crop plants. And when we talk about the various strategies that are used, that are employed for enhancement of food production in crop plants, it means that we have to discuss that that methodology, those methods, they are collectively called as plant breeding. इनको हम plant breeding बोलते हैं या इसको हम plant breeding बोलते हैं. So the crop enhancement जो है in terms of food production is done in case of plants with the help of plant breeding. So we have to understand what is this plant breeding. Plant breeding is simply purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, give better yield and are disease resistant. आपके पास कोई प्लांट है, उसमें यील्ड नहीं है, उससे आपको ज्यादा फसल नहीं मिलती है, उसमें बीमारी लगती है, उसको कल्टीवेट करना, वो ग्रो नहीं करता अच्छे से, उसको कल्टीवेट करना डिफिकल्ट है. आप क्या करोगे, आप उन प्लांट्स को मॉडिफाई करते हैं, उन प्लांट्स को मैनिपुलेट करते हैं, इस तरह मैनिपुलेट करते हैं ताकि आपको नए प्लांट्स मिलेंगे और जो वो नए प्लांट्स होंगे उन प्लांट्स के अंदर आपका जो है उनको ग्रो करना बहुत इजी होगा. उन प्लांट्स से आपको जो फसल है, आपका जो क्रॉप यील्ड है वो ज्यादा मिलेगा और उन प्लांट्स के अंदर जो है डिजीज नहीं लगेगी. इसी को हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग. सो पर्पसफुल मैनिपुलेशन, इंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप plants or plant species, intentional manipulation of crop plants or plant species so as to create, so as to develop new plants. When you intentionally or purposefully manipulate certain plants so as to create new plants, and those new plants are easy to cultivate as compared to the parental ones, those plants give you better yield as compared to the parental ones, those plants are disease resistant as compared to parental types. This purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant types that are better suited for cultivation and give you better yield and are disease resistant, this is known as plant breeding. इसको हम बोलते हैं plant breeding. And remember, plant breeding, conventional plant breeding has been practiced for thousands of years. Plant breeding जो है आम फहम plant breeding जो है या old plant breeding जो है या plant breeding जो है या simple plant breeding जो है, ये हम हजारों सालों से करते आए हैं. कब से करते आए हैं? It is as old as the history of civilization. आप बोलोगे कि सर आप कैसे बता रहे हो कि जैसे जब ह्यूमन सिविलाइजेशन आ गई, जब से इस धरती के ऊपर ह्यूमन बींग्स ने अपना जो उनमें जो माइंड डेवलपमेंट हो गया, उसके साथ साथ ही जो है उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग भी करना शुरू किया. और हमारे पास जो है द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लांट ब्रीडिंग, इट डेट्स बैक सम 9,000 to 11,000 years ago. So the history of plant breeding जो है it dates back to the 9,000 to 11,000 years back. And remember, जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग थी, जो एंशिएंट टाइम्स में प्लांट ब्रीडिंग जो थी, या जो हमारे जो आज एंशिएंट प्लांट ब्रीडिंग थी, उसमें हम क्या करते थे, वी यूज टू डोमेस्टिकेट वाइल्ड प्लांट्स. हम क्या करते थे, जो द फर्स्ट अप्रोच, सबसे पहला अप्रोच जो मैन के पास था फॉर क्रॉप एनहांसमेंट, दैट वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स. प्लांट्स वाइल्ड में ग्रो करते थे, उनको हमने अपने कंट्रोल के अंदर उनको हमने ग्रो करना शुरू किया. दिस इज कॉल्ड एज डोमेस्टिकेशन. वी स्टार्ट टेमिंग दोज प्लांट्स अंडर आवर ओन कंट्रोल. दिस इज कॉल्ड एज डोमेस्टिकेशन. सो द इनिशियल एरा ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स, जो उस टाइम इंसान को लगे थे कि यस दिस प्लांट कैन बी टू सम एक्सटेंट beneficial. It can provide us a food material or it can provide us something
बेनिफिशियल, तो उसको उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। तो फिर उसके बाद आफ्टर डोमेस्टिकेशन मैंने आपको बताया जो आजकल की हमारे पास क्रॉप वैरायटीज है, they are derivatives of domesticated plants. They are derivatives, they have been developed from domesticated plants that were developed by the ancient man। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, क्लासिकल फिर साइंटिस्ट डोमेस्टिकेशन के बाद साइंटिस्ट ने या जैसे जैसे साइंस में तरक्की हो गई, इंसान ने ये सीख लिया कि हाउ टू डोमेस्टिकेशन से वो आगे बढ़ गए, यानी अब उन्होंने डोमेस्टिकेशन छोड़ दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक प्लांट, एक क्रॉप वैरायटी है वीट की, उसमें ज्यादा यील्ड है, और दूसरी क्रॉप वैरायटी है उसमें डिजीज रेजिस्टेंस है, यील्ड कम है। लेकिन पहले वैरायटी में हाई यील्ड है, दूसरे वैरायटी में हाई डिजीज रेजिस्टेंस है। पहले वैरायटी में डिजीज रेजिस्टेंस कम है, दूसरे रेजिस्टेंस वैरायटी में यील्ड कम है। तो एक वैरायटी आपके पास वीट की है जिसमें ज्यादा प्रोड्यूस बनता है, जिसका क्रॉप यील्ड ज्यादा है। दूसरी वैरायटी है वीट की, उसमें क्या है, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस है, उसमें बीमारी नहीं लगती है। तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम इन दो प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, इट इज द आर्टिफिशियल intentional transfer of pollen grains from the anther of one plant to the anther of male plant to the stigma of the female plant। एक प्लांट को आप मेल कंसिडर करते हो, दूसरे प्लांट को आप फीमेल कंसिडर करते हो। मेल प्लांट से आप पोलन ग्रेन्स लेते हैं, दूसरे प्लांट जो है ये पोलन ग्रेन्स जो आप दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करते हैं, पॉलिनेशन हो जाती है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम करते हैं, इसको आप बोलते हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। और क्रॉसिंग, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग इज आल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, वी bring two plants that are having some desired characters and we want to combine the characters of those two plants in a single plant। What we do, we carry out their artificial hybridization। हम उनकी artificial hybridization करते हैं, artificial pollination करते हैं। जब हम उनकी artificial hybridization करते हैं, we get new plants, हमें new plants मिलते हैं, एंड वी सिलेक्ट डिजायर्ड प्लांट्स। उन न्यू प्लांट्स में भी हम डिजायर्ड प्लांट्स अब सिलेक्ट करेंगे। डिजायर्ड प्लांट्स का मतलब हो गया, अब हम देखेंगे कि इस प्लांट में ज्यादा यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंस है, उन प्लांट्स को हम सिलेक्ट करते हैं और उन प्लांट्स को हम यूज करते हैं फॉर फर्दर रेजिंग न्यू क्रॉप्स, फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स इन फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर एज वेल। तो हम उनको यूज करते हैं। सो ये तरीका था कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में, यानी एंशिएंट प्लांट ब्रीडिंग में हम डोमेस्टिकेशन करते थे। आजकल का जो हमारे पास अक्सर बेशतर क्रॉप प्लांट्स है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज दैट वर डेवलप्ड बाय एंशिएंट मैन। और कन्वेंशन जो हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री है, इट इज एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। हमारे पास जो है ओल्डेस्ट डेट है कब से ये स्टार्ट हो गई प्लांट ब्रीडिंग। द प्लांट ब्रीडिंग स्टार्टेड 9000 to 11,000 years ago। एंड एंशिएंट प्लांट ब्रीडिंग में हम डोमेस्टिकेशन करते थे। हमारे पास कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। We intentionally carry out crossing between two plants having two desired characters and we want to bring those two desired characters in a single plant। ये आपको आगे समझ आ जाएगा जब हम स्टेप्स पढ़ेंगे। शाबाश। तो जो हमारे पास मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग है, जैसे जैसे आप देखते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काफी ज्यादा जो है एडवांसमेंट हो गया, जेनेटिक्स में काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो गया, टिश्यू कल्चर के अंदर काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो गया। तो आजकल जो हमारे पास जो प्लांट ब्रीडिंग है, आजकल की जो मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग है, उस मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स का यूज करते हैं। वी मेक यूज ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन मॉडर्न एरा। आजकल के एरा में हम मॉडर्न मॉलिक्यूलर टूल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जीन ट्रांसफर करते हैं, हमारे पास टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है। तो मैंने आपको बताया जैसे जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रेवोल्यूशन आ गया, जैसे जैसे जेनेटिक्स में रेवोल्यूशन आ गया, जैसे जैसे हमारे पास टिश्यू कल्चर टेक्निक्स डेवलप हो गए,
तो आजकल के जमाने में हम प्लांट ब्रीडिंग जो है, इट इज नॉट द कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग बट इट इज द प्लांट ब्रीडिंग दैट इज बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स। मैंने आपको सिंपली बताया, मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स में हम एक प्लांट से एक जीन लेते हैं, बेटर जीन लेते हैं, हाई यील्डिंग जीन लेते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट जीन लेते हैं। ये हम एक प्लांट से निकाल के दूसरे प्लांट में इंसर्ट करते हैं ताकि उसमें जो है यील्ड बढ़े, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस बढ़े, उसमें जो है सिट्रस रेजिस्टेंस बढ़े, उसमें जो है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस बढ़े, या उसमें और तरह के जो है बेटर क्वालिटीज उसमें डेवलप हो जाए। क्रॉप की जो क्वालिटी है वो प्रोड्यूस की या क्रॉप की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए। आजकल के मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग में हम ये करते हैं, लेकिन इस यूनिट में हम मॉडर्न टेक्निक्स पे ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ये कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जो है ये हम किस तरह करते हैं, इसके थ्रू हमारे यहाँ कंट्री में एक रेवोल्यूशन आया था, दैट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम देखेंगे ये प्लांट ब्रीडिंग, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हम कैसे करते हैं, और इस कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम हमारे कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू कौन कौन से प्लांट्स का हमने क्रॉप यील्ड एनहांस किया था, कौन कौन से प्लांट्स की डिजीज रेजिस्टेंस हमने बढ़ाई थी, कौन कौन सी प्लांट्स की बाकी जो है सिट्रस क्वालिटीज बढ़ाई थी या सिट्रस रेजिस्टेंस उनमें डेवलप की थी, किस तरह डेवलप की थी, ये हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं जो कौन कौन से, अगर एक प्लांट ब्रीडर जो होगा, कौन कौन से कैरेक्टर्स वो एक प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहेगा। सबसे पहले मैं आई वांट टू लिस्ट द कैरेक्टर्स विच अ प्लांट ब्रीडर can use, can try to incorporate into a plant so as to develop a new and desired plant. एक पहला कैरेक्टर है, हमारा मकसद होगा कि टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, टू ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड। दूसरा जो होगा, टू ट्रांसफर द कैरेक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द यील्ड, अच्छी क्वालिटी के का जो है फसल या व्हीट या राइस हमें मिलेगा, ये दूसरा होगा। तीसरा जो उसके जहन में बात होगी, दैट इज इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, यानी हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हमारे जो फसल है वो सैलिनिटी से उनको कुछ नहीं हो जाएगा, सैलिनिटी रेजिस्टेंस उनमें हो, हम एक्सट्रीम टेम्परेचर रेजिस्टेंस उनमें हो, ड्राउट रेजिस्टेंस उनमें हो। हम ये भी चाहेंगे, हम ऐसे कैरेक्टर्स अब एक प्लांट के अंदर डेवलप करना चाहेंगे जिससे उसको कोई न वायरल बीमारी लगेगी, न उसको फंगस अटैक करेगा, न उसको बैक्टीरिया अटैक करेगा। हम ऐसे कैरेक्टर्स भी इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे जिससे एक प्लांट की इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। तो these are the characters which a plant breeder always tries to incorporate into a new plant, into a desired plant. First character is crop yield increased, character in crop yield। दूसरा जो है improved quality है। तीसरा जो है increased resistance against stresses, for example salinity stress, extreme temperature जो है या ड्राउट की अगर बात की जाए। चौथा जो है रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, चाहे वो पैथोजेंस वायरल पैथोजेंस हो, बैक्टीरियल पैथोजेंस हो या फंगल पैथोजेंस हो। इसी तरह जो हमारा ये भी मकसद होगा टू इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ आवर क्रॉप प्लांट्स टू इंसेक्ट पेस्ट्स which also damage our crop production, which also lead to destruction of our crop production। और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर मैं फिर से रिपीट करता हूं, वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कैरेक्टर्स दैट कैन इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, that can improve the quality of the yield, that can improve the resistance against various stresses, that can increase the resistance against various pathogens, that can increase the resistance against various insect pests। सो हमारा प्लांट ब्रीडिंग में यही मकसद होता है कि हम जो एक नया प्लांट बनाते हैं उस प्लांट में या तो क्रॉप यील्ड ज्यादा हो, उस प्लांट में की जो फूड होगा जो वहां से मिलेगा उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उस प्लांट
को कोई भी सिट्रस इफेक्ट ना करे, उसमें सिट्रस रेजिस्टेंस हो, उस प्लांट के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस हो, उस प्लांट के अंदर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हो। फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्लांट ब्रीडिंग जो है ये पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज है इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स दैट आर बेटर suited for cultivation, give better yield and are disease resistant। जो प्लांट ब्रीडिंग का जहां तक ताल्लुक है, प्लांट ब्रीडिंग एक प्रोग्राम जो है दे आर कैरिड आउट इन ए सिस्टमैटिक वे, दे आर कैरिड आउट इन ए प्रॉपर वे। रिमेंबर, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट इन ए सिस्टमैटिक वे, इन ए प्रॉपर वे बाय द प्लांट ब्रीडर्स। ये प्लांट ब्रीडिंग हम जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में करते हैं या कमर्शियल कंपनीज के अंदर हम ये प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। ये क्रॉप एनहांसमेंट करते हैं। ये क्रॉप एनहांसमेंट इन टर्म्स ऑफ यील्ड, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ सिट्रस रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। ये सारी कहानी जो हम या एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर करते हैं, या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर करते हैं, या हमारे पास कोई कमर्शियल कंपनीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कमर्शियल कंपनी है मोनसेंटो, वो मोनसेंटो जो है वो क्रॉप इंप्रूवमेंट करती है, वो प्लांट ब्रीडिंग करती है। और जो प्लांट ब्रीडिंग जो है, प्लांट ब्रीडिंग के जो मैंने आपको बोला, ये हम एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग के जो स्टेप्स है वो इस तरह है। सबसे पहला स्टेप जो है कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिक वेरिएबिलिटी? हम देखते हैं एक जो क्रॉप प्लांट होता है उसके जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट छोटा होता है, एक लंबा होता है, एक डिफरेंट तरीके के डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलती है एक क्रॉप के अंदर। सो द डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉप वेरिएबिलिटी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वी विल ट्राई टू कलेक्ट द प्लांट्स हैविंग फ्रॉम द वाइल्ड, और we will try to collect plants from the wild, and those plants they should differ in terms of their characters. We should collect all plants, small plants, large sized plants, or big or plants with small fruits, plants with large fruits, plants with disease resistance, plants with no disease resistance. We collect all such plants. So this variation among the individuals of a crop, of a plant, of a species, this is called as genetic variability. Genetic variability. So first we will collect the plants from wild. This is also called as germplasm collection. When you collect plants from the wild, आपके जहन में ये मकसद होगा कि ये जो मैंने ये प्लांट्स या सीड्स कलेक्ट किए, वाइल्ड से मैंने कलेक्ट किए, इन प्लांट्स के अंदर, इन सीड्स के अंदर वो सारे एलील्स, डाइवर्स एलील्स प्रेजेंट होंगे, सारे जीन्स के। तो इसको आप जर्मप्लाज्म कलेक्शन भी बोलते हैं। सो रिमेंबर, जर्मप्लाज्म कलेक्शन क्या होता है? जर्मप्लाज्म कलेक्शन इज कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और सीड्स हैविंग ऑल डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल जीन्स इन ए गिवन क्रॉप। इसको हम बोलते हैं जर्मप्लाज्म कलेक्शन। तो प्लांट ब्रीडिंग का जो पहला मकसद है, पहला स्टेप है, दैट इज कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, और कलेक्शन ऑफ के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ जर्मप्लाज्म, कलेक्शन ऑफ जर्मप्लाज्म। आप क्या करोगे? यू आर गोइंग इनटू द फील्ड एंड यू आर कलेक्टिंग प्लांट्स, यू आर कलेक्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप, small plants, big plants, plants with disease resistance, plants without disease resistance। आपका मकसद ये हो कि आपके पास जो आपने प्लांट्स कलेक्ट किए या सीड्स उस प्लांट के कलेक्ट किए, they are having all the diverse alleles for all the genes of the crop species. So when you collect plants or seeds with the intention in mind that you have collected plants and seeds, those plants or seeds are having diverse alleles for all the genes present in, और उन अच्छे प्लांट्स को आप सिलेक्ट करोगे। पहले आप इवालुएट करोगे, तो यू विल ग्रो देम, आप उनको ग्रो करोगे, उनमें देखोगे अच्छे प्लांट्स कौन है। आपने अच्छे और माड़े प्लांट्स, अच्छे गुड एंड बैड प्लांट्स की सिलेक्शन की, यानी आपने इवालुएशन किया, और इवालुएशन के बाद आपने देखा ये प्लांट अच्छा है, इस प्लांट में जो है
हाई प्रोटीन कंटेंट है। आपने देखा ये प्लांट जो है इसमें डिजीज रेजिस्टेंस है। आपने इस तरह के प्लांट्स सिलेक्ट किए, इवॉल्युएट किए, बाकी प्लांट्स को आपने डिस्कार्ड किया। तो आपने दूसरे स्टेप में, आप पहले स्टेप में हम कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म करते हैं या कलेक्शन ऑफ प्लांट्स करते हैं। जब आपने कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म किया, उसके बाद आप उस जर्म प्लाज्म को इवॉल्युएट करते हो, उन प्लांट्स को इवॉल्युएट करते हो, और उस इवॉल्युएशन के बाद आप बेटर प्लांट्स सिलेक्ट करते हो, बेटर प्लांट्स सिलेक्ट करते हो। बेटर प्लांट्स मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट में हाई प्रोटीन कंटेंट है और दूसरे प्लांट में जो है डिजीज रेजिस्टेंस है। ये दोनों बेटर क्वालिटीज है उस क्रॉप प्लांट के, उन क्रॉप प्लांट्स के। तो आपने ये सिलेक्ट किए। सो इवॉल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। आपने एक प्लांट जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है उसको आपने एक पेरेंट लिया, और दूसरा प्लांट आपने सिलेक्ट किया जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस है, उसको आपने दूसरा पेरेंट सिलेक्ट किया। तो आपने जब इन प्लांट्स की इवॉल्युएशन की और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स किए, फिर आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट्स करोगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ फ्लो चार्ट के थ्रू, मैंने आपको ये सिंपलीफाई करूंगा। सबसे पहले आप कलेक्शन ऑफ प्लांट्स करेंगे या कलेक्शन ऑफ सीड्स करेंगे। शाबाश, आपके जहन में मकसद होना चाहिए, इट शुड बी अ जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन हो गया, collection of plants या collection of seeds having all the diverse alleles of for all the genes of that crop species, इसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। आपने प्लांट्स कलेक्ट किए, सीड्स किए, उन प्लांट्स को आपने ग्रो किया, उन प्लांट्स में से आपने बेटर प्लांट सिलेक्ट किए। आपने दो प्लांट सिलेक्ट किए, एक पेरेंट आपने सिलेक्ट किया उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, दूसरा पेरेंट आपने सिलेक्ट किया उसमें डिजीज रेजिस्टेंस है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इनको हाइब्रिडाइज, चलो पेरेंट 1 को हमने मेल कंसिडर किया, पेरेंट 2 को हमने फीमेल कंसिडर कर दिया। शाबाश, पेरेंट 1 की खासियत है इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, पेरेंट 2 की खासियत है इसमें डिजीज रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपने क्या किया, यू कैरिड आउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी। हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम इमैस्कुलेशन करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर्स करते हैं, फिर हम उसके बाद बैगिंग करते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर्स हम किस प्लांट से करते हैं, फीमेल प्लांट से हम, हाँ फीमेल प्लांट में हम इमैस्कुलेशन करते हैं। क्या इमैस्कुलेशन इसलिए करते हैं ताकि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेल्फिंग, सेल्फिंग हम होने नहीं देते हैं, सेल्फिंग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम फीमेल प्लांट से, फीमेल पेरेंट से जो है एंथर्स जो है रिमूव करते हैं। इमैस्कुलेशन हमने किया, फिर हमने क्या किया, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स की हमने बैगिंग की। बैगिंग तब तक की जब तक इनका सिटिग्मा जो है रिसेप्टिव हो जाएगा। जैसे ही सिटिग्मा रिसेप्टिव हो गया, जो हमारा मेल पेरेंट है वहां से हमने पोलन ग्रेन्स उठाए, उसके एंथर से पोलन ग्रेन्स निकाले, वो पोलन ग्रेन्स हमने फीमेल पेरेंट के सिटिग्मा के ऊपर डाल दिए। दिस इज कॉल्ड एज डस्टिंग। डस्टिंग के बाद हमने रिबैगिंग किया, फीमेल प्लांट के ऊपर, फीमेल पेरेंट के ऊपर रिबैगिंग किया, ताकि टू अवॉइड एनी फॉरेन पोलन, to avoid any landing of any foreign pollen on the stigma of female parent। इसीलिए हम रिबैगिंग करते हैं ताकि कोई अनवांटेड पोलन इस फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं करना चाहिए, इसलिए हम बैगिंग करते हैं। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास नए प्लांट्स बनते हैं, नई जनरेशन बनती है, सीड्स बनती है, उन सीड्स को हम कलेक्ट करते हैं। जब सीड्स कलेक्ट करते हैं, उन सीड्स को हम जमीन में डालते हैं। जब हम सीड्स को हमने जमीन में डाल दिया, अब यहाँ पे एक और सिलेक्शन है, एंड दिस सिलेक्शन इज वेरी क्रूशियल। नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर यू कैरिड आउट द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज फॉलोड बाय अनदर स्टेप, दैट इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स। अब जब आपने हाइब्रिडाइजेशन किया, उस हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास जो प्लांट्स बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद सीड्स आपने कलेक्ट किए, सीड्स आपने जमीन में डाल दिए, उन सीड्स जर्मिनेट करेंगे, नए प्लांट्स बनेंगे। जब नए प्लांट्स बनेंगे तो वो नए प्लांट्स जो है वो रिकम्बिनेंट्स होंगे, वो हाइब्रिड्स होंगे, उनमें हाई प्रोटीन कंटेंट भी होगा, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। यानी एक ही प्लांट के अंदर आपके पास दोनों कैरेक्टर्स होंगे। तो आप क्या करोगे, आप जो हाइब्रिड सीड्स है आपके पास जमीन में डाल दिए, आप इनमें से बेटर प्लांट सिलेक्ट करोगे। बेटर प्लांट्स का मतलब हो गया आप ऐसे प्लांट्स सिलेक्ट करोगे जिनमें वाकई में हाई प्रोटीन कंटेंट भी है और जिनमें आप डिजीज रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है। शाबाश, आप ऐसे हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन रिकम्बिनेंट,
ट्रू हाइब्रिड्स की आप सिलेक्शन करोगे, ऐसे प्लांट्स की सिलेक्शन करोगे जिनमें दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, हाई प्रोटीन कंटेंट भी होगा, डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। उन प्लांट्स को आप कुछ जनरेशंस के लिए ग्रो करोगे, सेल्फिंग करोगे, ताकि उनमें होमोजाइगोसिटी, उनमें आप उसमें जो है सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ना हो आपने जो है हाइब्रिड सिलेक्ट किया, आपने सोचा चलो इसमें हाई यील्ड भी, हाई प्रोटीन कंटेंट भी है, डिजीज रेजिस्टेंट भी है, और आपने नेक्स्ट इसके सीड जमीन में लगाए, आपने क्या देखा, आपके पास प्लांट में हाई प्रोटीन कंटेंट है, डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ डिजीज रेजिस्टेंस है, हाई प्रोटीन कंटेंट नहीं है। आप क्या करोगे, आपने जैसे ही उन प्लांट्स को सिलेक्ट किया, आप उनको कल्टीवेट करोगे, आप उनको सेल्फिंग करोगे, ताकि उनके वो कैरेक्टर्स जो है वो अलग थलग ना पड़े, वो सेग्रीगेट ना हो जाएंगे, वो कैरेक्टर्स जो है वो कंटिन्यूअसली आगे जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होते रहेंगे। शाबाश, ये आप करोगे इस स्टेप के अंदर, यानी यू विल कैरी आउट सिलेक्शन ऑफ दिस रिकम्बिनेंट्स या हाइब्रिड्स की सिलेक्शन करोगे, उनकी टेस्टिंग करोगे, और जो सुपीरियर होंगे उन सुपीरियर वंस को सिलेक्ट करोगे, उनको आप सिलेक्ट करोगे, उनकी सेल्फिंग करोगे, और उनको आप होमोजाइगस बनाओगे। जैसे ही आपके पास अब रिकम्बिनेंट्स आ गए, होमोजाइगस रिकम्बिनेंट्स आ गए, और वो होमोजाइगस रिकम्बिनेंट्स जो है उनमें बेटर क्वालिटीज है, उनमें हाई प्रोटीन कंटेंट भी है, उनमें जो है डिजीज रेजिस्टेंस भी है, आप उनकी टेस्टिंग करोगे, आप उनको डिफरेंट टेस्टिंग करोगे कि वाकई उनमें वो कैरेक्टर्स मौजूद है जिस कैरेक्टर के लिए हमने ये ब्रीडिंग की थी, वो कैरेक्टर्स उनमें है, आप उनको टेस्टिंग करोगे। एंड दिस टेस्टिंग इज कैरीड आउट इन रिसर्च फील्ड्स। ये टेस्टिंग आप रिसर्च फील्ड्स में इनिशियली करोगे, उसके बाद, और ये टेस्टिंग आपके दौरान आप खास ख्याल रखेंगे, आप इन प्लांट्स को प्रॉपर इरिगेशन दोगे, इन प्लांट्स को प्रॉपर फर्टिलाइजर सप्लाई करोगे, और इन प्लांट्स की परफॉर्मेंस जो है आप आइडियल क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंडर आप स्टडी करोगे। यानी जैसे ही आपने सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स की, इन सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स की टेस्टिंग करोगे आप क्रॉप रिसर्च फील्ड्स के अंदर, और इस दौरान आप इन प्लांट्स को आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फर्टिलाइजर, प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करोगे। जैसे आपने रिसर्च फील्ड में आपको लगा, हाँ अब सारे प्लांट्स मेरे पास ऐसे हैं जिनमें हाई प्रोटीन कंटेंट भी है और उनमें डिजीज रेजिस्टेंस भी है, आपने उन प्लांट्स की जो है टेस्टिंग की रिसर्च फील्ड के अंदर, उसके बाद आप उन प्लांट्स की जो है टेस्टिंग करोगे शाबाश फार्मर्स फील्ड के अंदर। आप ये आपके पास जो ये नए वेराइटीज है, इन वेराइटीज की आप टेस्टिंग करोगे आप फार्मर्स फील्ड के अंदर डिफरेंट लोकेशंस में। डिफरेंट लोकेशंस रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। फॉर एग्जांपल आपने ये इस फसल को नॉर्दर्न इंडिया में भी लगाना है, आपने सेंट्रल इंडिया में भी लगाना है, आपने साउथ इंडिया में भी लगाना है, तो आप ये क्रॉप वैरायटी नॉर्दर्न इंडिया के फार्मर्स के फील्ड में भी इसकी टेस्टिंग करोगे, सेंट्रल इंडिया के फार्मर्स के फील्ड में भी इसकी टेस्टिंग करोगे, साउदर्न इंडिया के फार्मर्स के फील्ड में भी इसकी टेस्टिंग करोगे, ताकि आप देखोगे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है इंडिया के सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेट है, सेंट्रल इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेट है, साउथ इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेट है, इस तरह आप इनकी इवैल्यूएशन करोगे इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। और जब आपको लगेगा यस दे आर परफॉर्मिंग वेल, दे आर गिविंग बेटर यील्ड, दे आर हैविंग गुड प्रोटीन कंटेंट, दे आर डिजीज रेजिस्टेंस, देन यू कैरी आउट you release that variety and you आप फिर उस वेराइटी को रिलीज करते हो, फिर फार्मर्स को आप देते हो कि go and cultivate these crop varieties. These crop varieties are now having high protein content and they are disease resistant, उनमें बीमारी भी नहीं लगती है। शाबाश, these are the steps in plant breeding। तो सबसे मैंने पहले बोला this plant breeding is carried out in a systematic manner इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल कंपनीज के अंदर हम करते हैं। एंड प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी और कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म और सिंपली कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और सीड्स। Second is when you collect the seeds, you evaluate them, you grow them, you evaluate them and select the parental plants
from those collected genetic variability or from that collected germplasm. Then after, when you select the parents and you then carry out cross hybridization. आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जब हमने पेरेंट सिलेक्ट किए, एक पेरेंट के अंदर हमारा मकसद था इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट था, दूसरा जो है इसमें डिजीज रेजिस्टेंस थी। हम एक ऐसा प्लांट बनाना चाहते हैं जिसके पास दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, तो हम क्या करते हैं, हम उनके बीच जो है दो पेरेंट्स के बीच, एक के पास हाई प्रोटीन कंटेंट है, दूसरे के पास डिजीज रेजिस्टेंस है, हम उनके बीच जो है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, यानी वी कैरी आउट द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट्स. And once we carry out the cross hybridization, we carry out the selection and testing of superior recombinants. And remember, this setup is very important. This is very crucial setup. This is very crucial setup because in this setup we actually select the plants having both the characters. उन plants को हम select करते हैं, उनको हम grow करते हैं for more than, उनको हम ग्रो करते हैं, उनमें हम सेल्फिंग करते हैं ताकि उनमें यूनिफॉर्मिटी डेवलप हो जाए, ताकि उनमें सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स ना हो, ताकि उसका मतलब है ताकि उनमें होमोजाइगोसिटी डेवलप हो जाए. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, देन वी टेस्ट दो सिलेक्टेड रिकम्बिनेंट्स, जो हमारे पास सिलेक्टेड होमोजाइगस रिकम्बिनेंट्स है, वी टेस्ट देम इन रिसर्च फील्ड्स, वी टेस्ट देम इन फार्मर्स फील्ड्स. Once we get desired results, we test them in different agroclimatic regions of the country, and once we get desired results, what we do, we carry out the release of variety and we carry out its commercialization. फिर हम इसको बेचते हैं, लोगों में बांटते हैं, शाबाश. We carry out testing and release of commercialization of new varieties or cultivars. So first step is, remember this flow chart, we collect plants, this is the first step, then we select the parents out of those plants. We then carry out hybridization. When we select plants, for example, we selected plant 1, parent 1, we selected plant 2 as parent 2. This plant 1 is considered as male, it has high protein content. This plant 2 is considered as female, it has disease resistance. We then carry out hybridization. We know that in hybridization we carry out it in different setups. We first do emasculation, removal of anthers as stamens from the female plant. We then carry out the bagging of the female plants. Then we carry out pollen testing on the stigma of female plant. Then we carry out rebagging, and finally, when we carry out the hybridization, we select desired recombinants. We select desired hybrids, and we test those desired hybrids. Once we get suitable results, we test those desired hybrids in research fields first, then in farmers fields located in different agroclimatic regions, then we finally release a new variety. This is how plant breeding is carried out. This is how plant breeding is carried out. Thank you for watching this video lecture. I hope that you have understood all the basic points which I have highlighted in this video lecture, and I want to tell you one thing, that I have shown you here the breeding with respect to enhancement of protein content and disease resistance. Same is the way, for example, we want to increase the crop yield and disease resistance. Here we will select a plant having high crop yield instead of high protein content, and we select another plant having disease resistance. If we want to introduce what is called as disease resistance in a plant, so at that very time we select parents according to the type of characters which we want to incorporate into our new crop variety. Thank you for watching this video lecture. In the next video lecture, we will focus on green revolution, how this green revolution happened in India because of this plant breeding, and what were the varieties of wheat, rice and maize responsible for enhancement, this green revolution in our country. Thank you for watching this video lecture.